career of say 35 years, 35, 36 years, which I did, I had faced almost 7 to 8 transfers. I have always said that you can only be strong if you are knowledgeable. One strong point which you always have is लर्न एंड लर्न एंड आपका एग्जीक्यूटिव किसी प्रॉब्लम में फंसता है, मान लीजिए कोई विजिलेंस प्रॉब्लम हो गई या कोई इरेगुलरिटी डिटेक्ट हो गई, तो उसमें क्या है कि अगर अकाउंट्स वाला इन्वॉल्व भी नहीं होगा तो ही हैज टू बिकम अ पार्टी। बिकॉज आप सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्प्रूविंग लाइक एनीथिंग नाउ। देयर इज इन फैक्ट 19, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन योर असेसमेंट। आवर जॉब इज ऑन द जॉब वर्क इन द With सेंस Srishti. Today, we are so honored to have a miraculous legend with us, Mr. Bharat Bhushan Verma, sir. He is a former Indian Forest Service officer. Thereafter, in 1980, sir joined Indian Railway Account Service, and he retired from the top post as the Finance Commissioner in 2017. That is a service of 37 years. And even after retirement, sir continued to contribute to the nation by being a member of the Railway Claims Tribunal. Sir is also a qualified lawyer and is currently pursuing psychology. We are so honored to have you, sir. थैंक यू सो मच। The intention जिससे हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया लेजेंड्स विद सृष्टि, वो ये था कि जो एस्पिरेंट्स हैं, हमें कई बार पता नहीं होता है कि जो बाकी सर्विसेज हैं उनमें एक्चुअल में वर्क एक्सपेक्टेशन क्या है, रोल क्या है, या कैसे नेशन बिल्डिंग को कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, सोशल इम्पैक्ट किस लेवल का क्रिएट कर पाते हैं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस IRAS अगर कोई एस्पिरेंट चूज करते हैं तो उनके लिए आगे जाके करियर में क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, चैलेंजेस होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके लिए हम आपसे ये गाइडेंस चाहते हैं ताकि एक इन्फॉर्म्ड प्रेफरेंस हम फिल कर सके जब सर्विस चूज करें। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज एक्चुअली द जॉब ऑफ IRAS ऑफिसर? क्या काम हमसे करना एक्सपेक्टेड होता है अगर हम IRAS ऑफिसर बनते हैं? The Indian Railways is a transporter of the country. You are well aware of the functioning of the railways. We transport passengers, we transport goods, and we basically does the our job as in the, because in the railways, since there are functioning departments of technical services, there are three departments of uh, civil services. That is the railway traffic service, railway account service, and railway personnel service. These are the three services which are being fed by the civil services exam. So traffic service has role in transportation, personal service has a role in HR, and as far as the railway accounts is concerned, we are the financial advisors as well as the chief accounts officers of the railways, in the sense that we not only give the financial advice before the expenditure is incurred, we also give we also keep the accounts and maintain the accounts, maintain the budget, review the budget. But the process is very, very slow because you start as a junior scale officer, and we are called the assistant financial advisors in the first posting. So you are allotted a particular zone. There are 16 zones right now. So every probationer is allotted one zone, which is Lian Railway. Like when I joined, I was allotted Central Railway, the undivided Central Railway. Of course, 2003, the division took place, 9 zones became 16 zones. But you are allotted a particular railway, and normally 7 to 8 years of your initial years, you remain in that railway. After that, it's an all India service in the sense that you can be transferred to any zone all over India. It's a all India transferable job, and like I have carried out at least 7 to 8 transfers in my career, and I have moved around all parts of India, and so the role changes with the promotions. First thing is that there are time bound promotions, and if you are basically
you have a good age profile, you are joining in time, you actually can reach the top position of Financial Commissioner Railways. Now it is designated as member finance. So now the board has been reconstituted, so now it's called member finance. So member finance is a secretary level post. So that was the post which I rose to, because when I joined, I was 22 and a half and I had almost 36 and a half years of service. I mean, if I exclude my forest service, so, and being the youngest in the batch, I did have an advantage, and I worked on the top post. Of course, not for a long period. It was a very, very brief period because I had to join the tribunal. So I had to leave railways and then join tribunal. That time, the rule was like that. So this service, I will say, is one of the finest service. One important aspect I'll try to distinguish that while IRPS and IRAS, the personal as well as account service, have a kind of a stable job in the sense that you're basically working in office. Whereas in the traffic service, the job involves 24 by 7 work because it's involved with the transportation and the commercial activity. That is operations as well as the commercial activity, which is 24/7 in the railways, as you know that the trains are running all the time. So that job is a slightly different nature job. But as far as railway accounts is concerned, it's quite a stable job. You are working during office hours. There are no emergencies. The only exception being if you are posted as additional divisional railway manager, or you are posted to a general post of divisional railway manager, which I was. I was a DRM in Mysore, where I'm presently based. And when you go there you are in charge of a division and you have to look after all the departments. Other than that, railway accounts primarily deal with the financial advice as well as the accounting of whatever money is spent. Does that cover all your this thing? यस सर। सो मेरा इंटेंशन था कि हम वर्क एक्सपेक्टेशन एंड जॉब प्रोफाइल समझें। जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छे से समझ आया सर, बट वर्क Hmm. ऐसा है कि पूरा अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अराउंड रिवॉल्व करता है? Totally. Because ultimately, what happens is that there are at least 9 to 10 other departments. There is a civil engineering department, mechanical department, electrical department, signal and telecom department, security, HR. All these departments are totally dependent on accounts for all their day-to-day activities. In the sense that any work is to be done, it involves initial financial vetting by the finance, and basically once the work starts, then bill passing and keeping the accountant of the money is all the responsibility of the accounts team of a division headquarters as well as in the railway board. These are the three levels, and the job profile basically grows as you get your promotions. You may start with a division, you may work in the division, you may come to headquarters, zonal railway headquarters, and at times people come to railway board also on some assignments, even in senior scale and junior administrative grade. But there is a well laid down system of promotions in the sense that 2 years of service, if you have done, you will get senior scale. If you have done 6 years of service, then you will get an ad hoc junior administrative grade, and that will be regularized by 9 years of service. Then there is a selection grade after 13 years. Then there is a senior administrative grade which you get in the range of 19 to 20 years, and you get higher administrative grade by 27 years of service. And ultimately, but this is all these promotions are subject to your being clean, in the sense that because at every stage there is a selection process, there is a your service records are checked, your vigilance clearance are taken, all those factors are there. So considering all that factors, if everything is okay for you in career wise, then you grow very systematically.
Got it. So, in in the process of this career progression, how often are the zones transferred, or how much uh, choice does an officer get in terms of the zone selection? It varies. Actually, I will not say there is any strict formula of any this thing, but it varies. There are people who have stayed put in a place for a longer time. There are people who have been transferred very frequently. There is no set guidelines. It all depends on your boss. If you are doing well, bosses will try to keep you there. If you have there are problems with your working, then you may get transferred on that account, or even at the promotional stage also at times the transfer takes place, especially when you are getting your senior administrative grade and your higher administrative grade, that is the level 15, level 14 and level 15 of the last pay commission, then you are almost most of the people are transferred at that time to the other zones. Okay. So I will say that in a service career of say 35 years, 35, 36 years, which I did, I had faced almost 7 to 8 transfers. I had fairly stable tenure in Bombay, and in between uh, there were uh, short duration transfers, but I came back to Bombay. So it's there is no set rule. There are people who have basically worked in Delhi. They have worked in Northern Railway. Then they have come to Railway Board. Then they have worked in deputation to the Central Ministry. So they have spent at times 15, 20 years even in Delhi itself. So it depends. It varies with individuals to individuals. गॉट इट। मतलब ऑफिसर की चॉइस पूछी जाती है, वैकेंसी हो और द सीनियर्स एग्री, देन वो आपको पोस्टिंग मिल जाती है। बस 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। थोड़ा चॉइस पूछते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि हर बार आपकी चॉइस मानी जाए। जी। ये होता है कि भाई आपसे पूछा जाता है तो ये भी पूछा जाता है कि अच्छा एक नहीं 3 चॉइस दो, देखते हैं हम आपको किस में अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जनरली द कार्डर द बॉसेस टेक केयर ऑफ देयर ओन पीपल, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के बाद योर कार्डर इज कंट्रोल्ड बाय द रेलवे बोर्ड। सो ऑल ऑर्डर्स ऑफ योर ट्रांसफर्स आर इशूड बाय विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर। स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पोस्टिंग्स में नहीं नो, होता है। नहीं, इस जॉब में आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सिर्फ जब आप डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं, तब तो चूंकि आप एक डिवीजन को हैंडल कर रहे होते हैं। जब मैं इस डिवीजन में था तो आई वाज हैंडलिंग कितने 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका वर इन माय जुरिस्डिक्शन। तो मैं रेगुलरली जो रेगुलर हमारे एमपी थे, एमएलए थे हमारे जुरिस्डिक्शन के, उन सब से इंटरेक्ट करता था। एंड वो आते थे, उनसे मिलने जाते थे, फंक्शंस होते थे, इनागुरल फंक्शंस में वो लोग आते थे। तो लोकल एमपी मैसूर के जो होते थे उनसे रेगुलर मीटिंग होती थी। फिर कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग्स होती हैं। इस तरह से बेसिकली दैट इज द ओनली पोस्ट वेयर यू इंटरेक्ट। बट एज अ बाकी पोस्ट में जब तक आप रेलवे बोर्ड नहीं पहुंचते, रेलवे बोर्ड में पहुंच के, बिकॉज देर आर मिनिस्टर्स, देर आर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो जब आप एक उस लेवल पे वहां पहुंच जाते हैं, उसमें भी डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका कई बार नहीं होता है, कई बार होता भी है। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो कई बार आपको बुलाया जाता है मंत्री जी के सामने, या अगर आप मेंबर फाइनेंस तक पहुंच गए हैं तब तो आपका इंटरेक्शन, बिकॉज मिनिस्टर इज डिपेंडेंट ऑन द मेंबर्स एंड मेंबर्स आर फीडिंग हिम ऑल द इंफॉर्मेशन, तो वो इंटरेक्शन तो डे टू डे बेसिस पे होता है। अंडरस्टूड सर। एंड फील्ड पोस्टिंग वर्सेस डेस्क जॉब, कितना परसेंटेज, इज इट मेजरली अ डेस्क जॉब या फील्ड पोस्टिंग का अपॉर्चुनिटी थोड़ा रहता है? मेजरली ये डेस्क जॉब ये रहता है कि फील्ड इंस्पेक्शन रहते हैं while on a job. इंस्पेक्शन। Suppose ओके। I am dealing with the revenue management. Suppose I am in charge of the traffic account. That is, we have जैसे स्टेशन का स्प्रेड होता है, हर जगह आपकी अर्निंग हो रही है।
उन पैसों का कैसे अकाउंटल हो रहा है, कैसे उनका रिमिटेंस हो रहा है, कैसे उनको ट्रांसफर किया जा रहा है बैंक अकाउंट्स में, किस तरह से उस अमाउंट का पूरा रिकंसिलिएशन होता है। ये पूरी प्रोसेस में फील्ड इंस्पेक्शन हम लोगों के होते हैं। बट प्राइमरीली रेलवे अकाउंट्स इज प्राइमरीली ये डेस्कटॉप। सिर्फ जो जनरल पोस्ट में आप अगर आ जाते हैं एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर या डिविजनल रेलवे मैनेजर, तब आपका जॉब प्रोफाइल एकदम चेंज हो जाता है। अदरवाइज इन रेलवे अकाउंट वेर यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम, जनरल पोस्ट में डीआरएम टेन्योर है 2 साल का, एडीआरएम में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल का अगर आप बनते हैं। रेस्ट ऑफ योर कैरियर यू आर बेसिकली डूइंग अ डेस्कटॉप। Understood, sir. So basically, the work-life balance can perhaps be better maintained because majorly the office timings are 9 to 5 or 10 to 6. So family life does not suffer much because of या that. yes, in fact this is one of the positive points and that is the reason why ये जो सर्विस है इसमें अगर आप लेडीज का प्रोपोर्शन देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आपको काफी वो होगा, आई थिंक हम लोग अगर रेशियो निकालेंगे तो 40% लेडीज, बिकॉज ये जितनी भी सर्विसेज हैं, डिफेंस, आपने डिफेंस अकाउंट्स की बात करी, सिविल अकाउंट्स की बात करी, ज्यादातर ये सर्विस लेडीज की एक प्रेफरेंस भी बन जाता है बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस में अच्छा होता है। और जहां तक कंपैरिजन की बात है, अब सिविल अकाउंट्स में आप जाते हैं तो आपका फोकस ये है कि मुझे दिल्ली में रहना है, मुझे दिल्ली के बाहर नहीं जाना है, तब आपका सिविल अकाउंट्स है बिकॉज उसकी ज्यादातर पोस्टिंग दिल्ली में होती है। डिफेंस अकाउंट्स में अगेन लाइक रेलवे अकाउंट्स, उसमें भी ट्रांसफरेबल जॉब बिकॉज डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स ऑल ओवर इंडिया है, तो उसमें भी मूवमेंट रहता है। ऑडिट अकाउंट्स में एक सेट सिस्टम है ट्रांसफर का, इन द सेंस कि एवरी 5 years यू कांट स्टे एट अ प्लेस मोर देन 5 साल के ज्यादा आप एक जगह रह, तो देर इज ऑलवेज दिस ऑप्शन of transfers in audit accounts, but railway accounts में थोड़ी flexibility है, I can only say this much. Understood, sir. ये काफी अच्छा आपने पैरेलल कंपैरिजन हमारे साथ शेयर किया बिटवीन सिविल अकाउंट्स, डिफेंस अकाउंट्स, ऑडिट एंड अकाउंट्स। तो जो सिविल अकाउंट्स है, Right. आई थिंक उनमें ऐसा है कि मिनिस्ट्रीज के साथ ज्यादा कोलैबोरेशन रहता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जो अकाउंट्स है। Yes, yes, because देखिए सिविल अकाउंट्स का मेनली मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएशन होता है, और ऑडिट अकाउंट्स का सेंट्रल में भी होता है और स्टेट में ज्यादा होता है। स्टेट का ऑडिट जितना भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट्स आर डन बाय दी सीएजीज ऑफिस। सीएजीज ऑफिस आर मेनली ऑडिटेड अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स। उसमें IAAS। रेलवे का जो ऑडिट होता है, रेलवे के ऊपर भी एक ऑडिट बैठा है, उसमें भी फ्रॉम ऑडिट अकाउंट सर्विस पीपल कम, और वो रेलवे में एज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट इस तरह से आके काम करते हैं जोनल रेलवे। जैसे वो एजी बन के जाते हैं स्टेट में, इसी तरह वो रेलवे में भी आते हैं, बिकॉज ऑडिट अकाउंट्स वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डील करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी डील। एंड IRAS ऑफिसर के पास किस तरह की पावर्स होती हैं? देखिए पावर्स का ये रहता है कि देर इज अ सेट, रेलवे हैज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ शेड्यूल ऑफ पावर। देर आर एसओपीज विच आर लेड डाउन, इनफैक्ट कुछ लेजिस्लेटेड एसओपीज होती हैं जो रेलवे बोर्ड की तरफ से आती हैं, और उसके बाद लोकल जोनल रेलवे अपनी एसओपीज उस हिसाब से बनाता है, उनको गाइडलाइन समझ के, और उन एसओपीज को बेसिकली हर कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये हमारा रूल, हमें वही चीज लिमिट करनी होती है, और वो हर तरह के मैटर में देर इज अ शेड्यूल ऑफ पावर। तो एज अ फाइनेंस ऑफिसर योर जॉब इज टू सी कि ये जो शेड्यूल ऑफ पावर दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स को, देखिए ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्टली फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। जी। फील्ड में सिविल इंजीनियर है, वो ट्रैक का मेंटेनेंस कर रहा है। एक सिग्नल इंजीनियर है, वो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन को देख रहा है। एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो रोलिंग स्टॉक को देख रहा है, कोचेज वैगन्स इनकी इनकी मेंटेनेंस को। तो ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, इनका एक सेट वर्किंग पैटर्न होता है और एक वर्किंग मेथड होता है जिसको
हम लोग एज फाइनेंस ऑफिसर हम लोग बेसिकली ओवरसी करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं, इनके फाइल्स हमारे थ्रू जाती हैं एट एवरी स्टेज। एंड अल्टीमेटली जब सब कुछ काम हो जाते हैं उसके बाद जो खर्चा होता है उसका अकाउंटल रखना, उसका फिर एक फाइनल लेवल पे पूरी जोनल रेलवे से कंसोलिडेट होके जो बजट आता है वो रेलवे बोर्ड में कंसोलिडेट होता है। उसके बाद फिर एज अ रेलवे बजट वो फाइनली पार्लियामेंट में बजट होता है। सो ऑल दैट एक्सरसाइज स्टार्ट्स विद द डिवीजन, जोनल रेलवे में जाता है, जोनल रेलवे से रेलवे बोर्ड में आता है। जोनल रेलवे के अलावा देर आर होल लॉट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स रेलवे के, वो उसमें भी सेम फंक्शंस आर देयर विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, गिविंग एडवाइस एंड देन कीपिंग द अकाउंटल एंड देन giving the details of that accountant into the to the apex body that is the railway board। और इसमें मैं मतलब ये ऐड करना चाहूंगा कि जी, हाँ, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग क्योंकि शुरू से जूनियर स्केल लेवल से ये काम शुरू करते हैं, हमको ग्रास रूट लेवल में कैसे अकाउंटिंग करनी है ये शुरू में ही सीख जाते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। हम लोगों को थोड़ा डेबिट क्रेडिट शुरू में बहुत साइंस ग्रेजुएट्स को बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन वंस यू गेट इनटू इट दिस इज कॉमन सेंस। तो एक बार आप जब सीख लेते हो रेलवे का अकाउंटल सिस्टम से डिविजनल लेवल पे आपने सीख लिया, अब आप जब जोन में गए, जोन में करीब 5 या 6 डिवीजन होंगी, उनका कंसोलिडेशन होता है। फिर इसी तरह 16 जोन जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जब आप रेलवे बोर्ड में होते हो आप 16 जोन से इंफॉर्मेशन लेते हो। तो मैक्रो लेवल पे जाके बोर्ड में पूरा इंडियन रेलवे का कंसोलिडेटेड बजटरी सिस्टम एक इवॉल्व हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं सर कि कोई भी प्रोजेक्ट आपके ज़ोन में या जहाँ पर आप पोस्टेड हैं, रेलवे प्रोजेक्ट, शुरुआत से लेके उसका फ़ॉर्मुलेशन, उसके बारे में एडवाइस देना, वहाँ से एंड तक, कंप्लीशन तक, दैट गोज़ थ्रू योर अप्रूवल्स, और उसके ऊपर जितना खर्चा हो रहा है, अकाउंटिंग हो रहा है या फोरकास्टिंग ऑफ एक्सपेंसेस हो रहा है, दैट ऑल नीड्स योर अप्रूवल फॉर अ सक्सेसफुल कंप्लीशन। So I will say it in a railway parlance, right from the estimation stage of a project or a work or whatever you want to do. You initially start with the estimate, then you make out the proposal, which is then also verified by the finance, then the execution of work, bill passing, and then after the work is completed, final accountal and drawing right up to the completion report of that work. So what you have said, I have carried it in a technical language of railway, रेलवे की टेक्निकल लैंग्वेज में, राइट फ्रॉम एस्टिमेट स्टेज से लेके कंप्लीशन रिपोर्ट स्टेज तक हर प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी और अकाउंटल हमारे पास। Understood. So guardians of the purse of the railways, perhaps. Yes, absolutely. Not only, see, there is a difference between defense and railways. Defense is a spending organization. जी, Railway is both earning as well as expenditure oriented. जी, In जी, fact, हम लोग अर्न करते हैं एंड देन वी स्पेंड इट रूटेड थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमको जी। सारी जो अर्निंग हमारी होती है, जो स्टेशन पे हो रही है, कहीं भी हो रही है, वो हम कंसोलिडेटेड फंड में डालते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट से एक बजट का ऑथराइजेशन लेके वो एक्सपेंडिचर को हम खर्चा करते हैं by distributing all the amount to the zonal railways, and zonal railways in turn give it to the divisional railways. Understood, sir. And एक पॉइंट जो आपने उठाया सर, वो मैं डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूंगी कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, एंड हो सकता है कुछ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हों या कॉमर्स विदाउट मैथ्स के हों। तो ऐसा किस हद तक हेल्पफुल होता है अगर कोई फाइनेंस और अकाउंटिंग बैकग्राउंड का होता है, और कितना मुश्किल होता है अगर कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का हो तो इस जॉब को करना? नहीं नहीं, मैं इसमें नहीं है, हाँ इसमें मैं नहीं एग्री करूंगा, बिकॉज क्या है कि देखिए जब सिविल सर्विसेज का क्वालिफाइंग सिचुएशन है, यू शुड बी ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, विच मीन्स कि आप किसी भी डिसिप्लिन के हो, आप में इतनी इंटेलिजेंस लेवल है कि आप एक इस पर्टिकुलर सर्विस में जब आप आ जाते हो और आप इस सर्विस में रहते हो पूरी इसमें,
और ग्रास रूट से स्टार्ट करते हो, आपकी लर्निंग प्रोसेस इतनी क्विक होती है बिकॉज यू कीप लर्निंग सो मच एवरी डे, and with your my thing, it is not very difficult for any disciplined person to get into the system. And ultimately one more thing is that एक स्टेज के बाद आप पर्सनली अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, योर पीपल आर डूइंग द अकाउंटिंग। व्हाट आप जो कर रहे हैं, दैट यू आर डूइंग इट इज मैन मैनेजमेंट, गेटिंग द वर्क आउट ऑफ पीपल, because you are actually in a managerial post at every stage, and as you grow in your career, this managerial control also improves. Understood. So just to understand our discussion till now, I'll sum it up कि career progression बहुत regular है based on performance and clean record. Number 2, work-life Right. balance clearly manage हो जाता है because it is majorly a desk job. कभी कभार फील्ड पर काम होता है, जैसे सर ने बताया कि जब डिविजनल पोस्टिंग थी तब। और उसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज ऑलमोस्ट निल, सो इफ somebody is looking for that kind of peace in their work, definitely they can choose IRAS. पोस्टिंग्स जो है 16 जोन्स है, उनके बेसिस पर है। और ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया सर्विस की तरह कि आपको अगर जो कैडर मिल गया आपको लाइफ लॉन्ग उस कैडर में रहना पड़ेगा। आपको ट्रांसफर्स मिलेंगे एंड यूजुअली अर्बन पोस्टिंग्स या फिर डेवलप्ड रीजन्स में जहाँ पर रेलवेज है वहाँ पोस्टिंग होती है, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, फैसिलिटीज फॉर फैमिली वो अवेलेबल रहता है। अदर देन दैट ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस या अकाउंटिंग का बैकग्राउंड हो। ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है और हर बैकग्राउंड के ऑफिसर्स आज की तारीख में IRAS में हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करे। एंड अदर देन दैट सर, what are the challenges that one might expect to face in this job, IRAS में? See, if you are looking at it from the point of view of an executive, for an executive who he wants to do his job on a day-to-day basis, he has a real challenge convincing the accounts. So we are basically doing a very, I will say, a very unpleasant job, because they feel that we are basically putting brakes in everything. But our role is that we have to not only ensure that the rules are followed, and there is no deviation to the schedule of power which has been prescribed. So challenge तो रहता है, क्योंकि you are not there to basically make people happy, because your job is such that you are basically in eyes of the others in the department itself. They feel that you are an obstruction to them for whatever they want to do. But then this is a part of checks and balance, and everybody understands it gradually. Initially एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को भी लगता है, बट देन लेटर ऑन दे रियलाइज दैट वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ द rules and procedures, and being the custodian, it is our responsibility also to do that job. बेसिकली आप क्लास मॉनिटर हैं। क्लास मॉनिटर है, थोड़े अनप्लेजेंट रहते हैं, लोग नाराज रहते हैं, लेकिन अब तरीका ये है कि आप किस तरह से क्लास मॉनिटर होके सारे स्टूडेंट्स को डील करते हैं, इस जी। पे डिपेंड करता है। आप प्लेजेंट वे में भी डील कर सकते हो, आप उनको अगर खाली ना ही बोलोगे हर चीज में तो वो परेशान हो जाएंगे। तो आपको ना नहीं बोलना है, आपको ना भी बोलना है, और ये भी बताना है कि क्या गलत है, इसीलिए हमने ना बोला है, और आप किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। So it's again a positive way of dealing with your colleagues. Once your temperament is okay, you are dealing with them well, वो लोग ultimately they look upon you that okay, you are there to take care of. I will not flout any rule because you are there to take care of. क्योंकि जो फंड्स का अप्रूवल हो रहा है, कोई भी अगर रेलवे का प्रोजेक्ट है तो वो भी दैट इज गोइंग थ्रू यू, थ्रू योर अप्रूवल। Absolutely, absolutely. तो अगर हम डिस्कस करें कि सर अगर कोई IRAS ऑफिसर बनना चाहते हैं एस्पिरेंट, तो क्या क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपने बताया इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल हैंडलिंग, उसके अलावा सर?
I will say that I think an average graduate or a post graduate, ऐसा वो जरूरी नहीं है कि भाई you have to have a commerce background or you have to have a business administration background. वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, but yes, if these things are there, that is an advantage. कि आपको ठीक है। अकाउंटेंट वगैरह में थोड़ा सा शुरू में डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट इसको समझने में आपको थोड़ी आसानी होती है. Otherwise, it is. I will say it's a mainly a common sense working. It's not a very big deal. Learning the tricks of the trade and very fast we are able to learn our system working. सर मोनोटोनस हो जाता है क्या आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम? क्योंकि अकाउंट्स में आई आई डोंट नो कि वेरिएशन काम में हमारी डे टू डे लाइफ में या जॉब में कितना ज़्यादा रहता होगा? एक्चुअली इसमें क्या है कि बोरियत इसीलिए मोनोटोनस नहीं होता है बिकॉज आपको डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस मिलते हैं. आज अगर मैं रेवेन्यू मैनेजमेंट कर रहा हूँ, कल को मैं एक सडनली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का इंचार्ज बन जाऊंगा. Then after that, I'll become in charge of the general administration. I will become the HR because रेलवे में अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपना एचआर खुद करता है. तो यू आर योर ओन एचआर डिपार्टमेंट. तो यू में भी जनरली आप एचआर में भी आप अपनी डिपार्टमेंट में रह सकते हो. तो देर इज अ आई विल से फेयर अमाउंट ऑफ वैरायटी इन द जॉब. तो उसमें ये रहता है कि आप मोनोटोनस नहीं कह सकते बिकॉज बहुत डिसिप्लिन है रेलवे में. अकाउंट्स के विद इन ही बहुत सारे डिसिप्लिन हैं और हर एक्सपीरियंस अपने में यूनिक. आपकी करियर प्रोग्रेशन रेगुलर होने के साथ-साथ डाइवर्स अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती है। सो यू कीप ऑन इवॉल्विंग एज़ एन ऑफिसर आल्सो, एज़ अ पर्सन आल्सो। यस. अंडरस्टूड। एंड सर हमने अपॉर्च्युनिटीज़ एंड चैलेंजेस डिस्कस किए बट मैं पर्सनली क्यूरियस हूँ कि आपने ऑल इंडिया सर्विस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, वहाँ से रिज़ाइन करके व्हाई डिड यू चूज़ आईआरएस? एक्चुअली मैंने जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि फॉरेस्ट सर्विस वी इन आप अगर इफ आई गो इनटू द बैकग्राउंड आई वी वर नॉट इवन अवेयर ऑफ वेदर एनी सच सर्विस एग्जिस्ट व्हेन वी वर डूइंग आवर पोस्ट ग्रेजुएशन. वी वर नॉट इवन अवेयर. तो हमारी सर्विस के कुछ लोग जब फॉरेस्ट सर्विस में गए तो हमें एंड आई वाज परस्यूइंग माय एमफिल. और उस टाइम हमने ये सोचा कि भाई हम तो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छे खासे हैं. तो इफ दीज टू पीपल कैन गो इनटू द फॉरेस्ट सर्विस, हम लोग क्यों नहीं जा सकते. तो देन वी बेसिकली फॉलोड द सूट एंड इन द प्रोसेस सिविल सर्विसेज का पता लगा, उसका फॉर्म भरा. कुछ हमको एक सीनियर लोग मिल गए थे गाइड करने के लिए कि फॉर्म कैसे भरना है, सर्विस कैसे ऑप्शन बनना भरना है, कौन सी सर्विस पहले रखनी है कौन सी बाद में रखनी है. ऐसा होता है कि जब आपकी एक स्टेज वैसी आती है तो आपको कोई ना कोई मेंटोर मिल जाता है जो आपको उस स्टेज पे गाइड करता है. हमारे लिए भी कुछ अच्छे मेंटोर हमें मिले लाइफ में जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया. और फिर हम लोगों की एक ये भी था कि एक सेंस ऑफ कॉमरेडरी, जैसे 5-6 लोग इकट्ठे प्रिपरेशन करते थे. तो व्हेन वी वर डूइंग प्रिपरेशन इन जॉइंटली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के जब हम तैयारी करते थे तो इट वाज काइंड ऑफ जैसे करना है, वी हैव टू क्रैक इट. सो द मोटिवेशन वाज वेरी हाई क्योंकि अदर प्रोफाइल कोई नहीं था. एमएससी के बाद एमफिल करिए, उसके बाद 5 साल 4 साल पीएचडी में लगते थे, तब भी आपको गारंटीड जॉब नहीं होता था. प्रोफेसर ग्रेड्स वर वेरी पुअर. सो वी हैड एन ऑप्शन. सो व्हेन सम mentors came in the way, we had an option to try and compete, and we gave our best. We gave our not 100% but 200%. And इन फर्स्ट अटेम्प्ट एक पहले अटेम्प्ट में फॉरेस्ट की सर्विस किया, सिविल सर्विस को पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया. एंड थर्ड अटेम्प्ट ऑल्सो रिटर्न वॉज क्वालिफाइड, इंटरव्यू भी हुआ लेकिन उसमें रैंक वॉज नॉट इम्प्रूव्ड. तो मैं आई कंटिन्यू द रेलवे अकाउंट्स. थैंक यू सर। आपने काफ़ी ऑनेस्टली शेयर किया अपनी जर्नी के बारे में। हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं,
उनका काफी इन्फ्लुएंस होता है हमारे खुद के करियर डिसीजंस और लाइफ डिसीजंस पर। एंड जेन्युइनली यू हैड जी अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल हु वर एकेडमिकली ओरिएंटेड, तो सबने एक दूसरे को मोटिवेट करके, हेल्प करके, गाइड करके, मेंटर करके सही दिशा में आगे बढ़ाया। एंड आई थिंक दैट फॉरेस्ट सर्विस से आईआरएएस में आना really brought a better वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्सो। एंड रेलवेज का नेटवर्क काफी ज्यादा एक्सपैंडेड है, तो उस तरह से एक्सपोजर दैट यू गॉट वाज वेरी यूनिक। एंड आई जस्ट टू बी कैंडिड, यस आपके पास टिकट बुक यस करने के रिक्वेस्ट आते हैं कि हमारी फैमिली को जाना है एग्जैक्टली। तो और टिकट्स मिल जाए। और क्या है कि हाँ। सर आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। देखिए, ये बस मैं इतना ही कहूंगा कि एक स्ट्रांग विल चाहिए टू बी समथिंग वंस। जी। एक आपके अंदर की विल स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, फोकस क्लियर है, और आप जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, व्हेन यू डू योर बेस्ट, आई थिंक देन योर कैरियर डेस्टिनी इज ऑलरेडी देयर फॉर यू। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सर, एक माइंडसेट वाली बात जो आपने शेयर की कि विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बियॉन्ड ऐसे कोई 3 वैल्यूज है व्हिच गाइडेड यू इन योर प्रोफेशनल करियर? बिकॉज़ देयर मस्ट बी टफ डेज आल्सो, बट व्हाट वर द वैल्यूज दैट you held on to very strongly? यस यस। सी सी one value is, I have always said that you can only be strong if you are knowledgeable. One strong point which you always have is learn and learn and learn. Even when you are a junior scale officer, senior scale officer, junior, I mean whatever level you are working, पहली बात तो ये है कि आपको नॉलेज एकदम फोकस्ड, आप जितना नॉलेजेबल बनेंगे उतना आप पावरफुल बनेंगे इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बस जब आपकी नॉलेज बोलती है तब पीपल ऑल्सो अप्रिशिएट। उसके अलावा इंटेग्रिटी, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट विच यू हैव। दिस इज वन डिपार्टमेंट जिसमें मैं ये कहूंगा कि अगर आप ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, एज लॉन्ग एज आप अपने थॉट्स में, अपनी उसमें एक क्लैरिटी रखो कि आई हैव टू डू माई वर्क सिंसियरली। सो सर, आपने जो क्वालिटीज बताई कि एक आईआरएएस ऑफिसर में डेफिनेटली होनी चाहिए, वो है कि नॉलेजेबल होना चाहिए, अपना काम अच्छे से पता हो, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट्स भी ना हो और जो एफिशिएंसी है वो अफेक्ट ना हो। इंटेग्रिटी होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर। बट सर, आपने पहले बताया था जैसे कि जो काम है एक आईआरएएस ऑफिसर का, उसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, बिकॉज़ समटाइम्स अकाउंट्स का या फाइनेंस का काम हैंडल करते हुए कुछ इर्रेगुलैरिटीज़ होती है या कुछ लोग लीनिएंसी रिक्वेस्ट करते हैं। तो हाउ डिड यू डील विद सर्टेन रिक्वेस्ट्स व्हिच वर नॉट फीज़िबल? क्योंकि we cannot make an enemy out of everybody and we have to work harmoniously in the department. तो ऐसे अगर आप कुछ इंस्टांसेस या एडवाइस शेयर कर सके फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड गेटिंग द वर्क डन विदाउट अपसेटिंग द इकोसिस्टम। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ probably every service. Whenever people are interacting, they are doing their professional work. Every professional has their own domain area. तो हर एक को ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। दूसरे को, एक हम लोगों का थोड़ा सा अनप्लेजेंट काम ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। नाउ अगेन मैं वही कहूंगा कि आपके ऊपर आपकी डिप्लोमेसी क्या है, आप किस तरह से लोगों को टैकल करते हो। इफ यू प्रोवाइड देम विद एन ऑप्शन, सपोज कोई वो चीज गलत कर रहे हैं,
आप उनको ये समझा सकते हैं कि देखो ये तरीका तो गलत है। हाँ, मैं तुम्हें दूसरा एक तरीका सजेस्ट कर सकता हूँ। इफ यू डू इट लाइक दिस, देन इट विल गेट कवर्ड अंडर। तो ये आपकी बेसिक टैक्टिक्स हैं आपकी। ये बेसिकली ये आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आता है। बिकॉज शुरू में जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं, पहली बात तो आपको नॉलेज गेन करने में समय लगता है। तो तब तक आपको यू हैव टू बी, जब नॉलेज आप धीरे धीरे गेन करने लगते हो, और एंड देयर आर पीपल टू गाइड यू, माइंड यू, आप एक मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, आपके नीचे सीनियर सेक्शन ऑफिसर्स हैं, आपके नीचे इफ यू आर अ जे ग्रेड ऑफिसर, आपके अंडर और ऑफिसर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको बताते हैं कि क्या रूल है, क्या वो है, क्या शेड्यूल ऑफ पावर बोलता है। तो कई चीजें उनके लेवल पे अगर टैकल नहीं होती तो आपको उस कॉन्फ्लिक्ट से रेजोल्यूशन करना पड़ता है। तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, एज लॉन्ग एज यू आर फेयर टू अदर। तो वो तो हर सर्विस का के इश्यूज है। उसमें कोई एक्सक्लूसिवली इस चीज का खाली अकाउंट्स में इशू है ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो उनका जो मेंटेनेंस विंग्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं या मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है डेली का। बिकॉज डेली ऑपरेशंस चलते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करता है। सर कोई मेमोरेबल इंस्टेंसेस जो आप शेयर करना चाहेंगे फ्रॉम योर सर्विस? नहीं, मेमोरेबल तो नहीं है। ऐसा होता है कि देखिए, ऐसा होता है कि क्योंकि आपका रोल हर चीज में होता है, तो जब आपका एग्जीक्यूटिव किसी प्रॉब्लम में फंसता है, मान लीजिए कोई विजिलेंस प्रॉब्लम हो गई या कोई इरेगुलरिटी डिटेक्ट हो गई, तो उसमें क्या है कि अगर अकाउंट्स वाला इन्वॉल्व भी नहीं होगा, तो ही हैज टू बिकम ए पार्टी टू दैट। बिकॉज वो ये देखने वाले एक आउटसाइडर व्यू में एक विजिलेंस ऑफिसर ऐसे देखता है कि ये आदमी ये गलत काम कैसे कर सकता है आपके होते हुए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस तो नहीं है, बट इस तरह से कुछ कुछ सिचुएशंस आती है। ऐसा नहीं है कि आपका एकदम कैरियर बिल्कुल वो होता है कि भाई हर चीज पॉजिटिव हो रही है आपके लिए, हर चीज अच्छी हो रही है, हर चीज टाइम पे हो रही है। समय समय पर तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं जैसे जैसे आती है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस, इतनी अब सर्विस छोड़े भी बहुत 7 साल हो गए हैं, तो it becomes very difficult to even recall if there is any incident of this kind. But यही है कि जैसे हम लोग, मैं इतना बता सकता हूँ, जैसे मैंने यूनियंस के साथ, हमारी रेलवे की यूनियंस तो बहुत वेल फेमस है, बहुत स्ट्रांग यूनियंस है रेलवे की। तो रेलवे यूनियंस के साथ मैंने झांसी डिवीजन से स्टार्ट किया था, तो विच वॉज वन ऑफ द टफेस्ट डिवीजन इन टर्म्स ऑफ द यूनियन रिलेशन। तो वहाँ हमने यूनियंस को के साथ किस तरह से डील करना है, उनको कैसे इंटरेक्ट करना है, वो एक बहुत हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि यूनियन वाले लोगों से बहुत आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग आपसे ज्यादा समझ के आते हैं, उनकी रूल पोजीशन उनको ज्यादा अवेयरनेस होती है। तो एक लर्निंग प्रोसेस हर इंसान जो आपके साथ इंटरेक्ट करता है उससे मिलती है। तो स्पेसिफिक इंस्टेंस तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, ये इस तरह से हर एक से सीखने को मिला है। सर आपने ऑलमोस्ट 36-37 इयर्स देश को सर्विस दिया। हाउ हैज द सिस्टम एटलीस्ट ऑफ द रेलवेज इवॉल्व्ड इन योर अंडरस्टैंडिंग? देखिए, ऐसा है कि हमने सर्विस ज्वाइन की थी 1980 में। वो इरा था स्टीम इंजन का। जी। स्टीम इंजन के इरा से स्टार्ट करते हुए हमने डीजलाइजेशन, और उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन, और अभी तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन। सो एक तो इन टर्म्स ऑफ जो एक, और दूसरा ये है कि उसके साथ साथ जो ऑपरेशंस के तरीके हैं बहुत बदले हैं, बहुत ज्यादा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदले हैं। हम लोगों के डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे नए नए चीजें हुई। इनफैक्ट
1987 के आसपास एक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना, पहली बार एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, स्टार्टेड लीजिंग द कोचेज एंड द वैगन बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम द मार्केट। तो शेयर होल्डर से पैसा लेके, सो धीरे धीरे वर्ल्ड बैंक ऑल्सो केम इन सम प्रोजेक्ट्स, दे स्टार्टेड फाइनेंसिंग, जापानीज financing came in the dedicated freight corridor. So over a period of time, फाइनेंस में भी बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहा, बढ़ता गया, और अभी तो खैर बहुत बढ़ गया है, पिछले 10 साल में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और साथ साथ ये रहा कि आउटसाइड फंडिंग ऑल्सो बेसिकली केम इन द रेल। So there has been a lot of development on that account over a period of last 35 years, I can. इज ओनली गेटिंग बेटर, क्योंकि रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन एक बहुत It is हाई only स्पीड से getting हो रहा better because आप सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्प्रूविंग लाइक एनीथिंग नाउ। देर इज इनफैक्ट 2016 में देर वॉज मर्जर ऑफ द रेलवे बजट विद द जनरल बजट। देर वॉज नो जी। सेपरेट रेलवे बजट, प्रेजेंट जो होता था, जो मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर करते थे, वो बंद हो गया। नाउ इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ द जनरल बजट। मर्जर के बाद भी एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हमें पैसा मांगना पड़ता था। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली, क्योंकि जनरल बजट को डील करता है, रेलवे इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर फॉर देम, तो दे गिव एनफ फंडिंग टू अस। तो वो आपको मांगने नहीं जाना पड़ता कि हमारी इतनी डिमांड। अब वो इट इज पार्ट ऑफ, और क्योंकि एक पॉलिटिकल विल है टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फंडिंग मिल रही है। आज जिस लेवल की फंडिंग है, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे अपने टाइम में। बट इन द लास्ट 7, 10, 8, 10 years, बहुत ज्यादा फंडिंग इंक्रीज हुई है ग्रेजुअली। एवरी ईयर देर इज अ रियल इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। बजट मर्जर से सर सिर्फ बेनिफिट्स ही हुए या किसी तरह के चैलेंजेस भी आए थे? चैलेंजेस तो थे, देखिए ऐसा होता है कि जब हम रेलवे बजट प्रेजेंट करते थे, तो हम एक बड़ा एग्जॉस्टिव बजट बनाते थे, पूरा उसमें प्रोजेक्ट्स ये वो सब डिटेल्स देते थे। पर वो क्या हो गया कि जनरल बजट में जाते ही इट हैज बिकम वन पैरा ऑफ द बजट, बस वन स्मॉल पैरा ऑन रेलवे। तो थोड़ा, आई विल से फायदे तो हमें ये हो गए जो मैंने अभी बताया, कि हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, मतलब हमें कहना नहीं पड़ता था, वो हमें कहता था कि नहीं, ये हमें डायरेक्टिव मिले हैं टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो इसीलिए अब आपको पैसे की कमी नहीं होगी, आप पैसा लीजिए जितना आपको चाहिए। अगर आपको एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए तो हम आपको परमिशन देंगे, आप एक्सटर्नल फंडिंग करिए। बट अगेन, एक्सटर्नल फंडिंग को आपको उसके साथ कोरिलेट करना पड़ता है कि आपको रेट ऑफ रिटर्न क्या है, आप जिस प्रोजेक्ट में उसको पैसा डाल रहे हो, आपको रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है। आर यू इन ए पोजिशन टू पे बैक द इन्वेस्टमेंट विच यू हैव कैरिड आउट, विच यू हैव डन। तो वो एक एस्पेक्ट होता है। तो लेकिन इट हैज बीन, आई विल से ऑन द होल, मर्जर हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, आई विल से। एंड जिस तरह से आई थिंक सर्विस डिलीवरी ऑफ रेलवेज का फोकस है कि जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्विसेज हुआ, फूड डिलीवरी एंड ऑल, उससे कुछ आईआरएएस की जॉब पे कोई इम्पैक्ट आया सर? नहीं, ऐसा है कि अभी हमारे पास करीब 10 से 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एंड मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली ड्राइंग पीपल फ्रॉम रेलवेज ओनली ऑन डेपुटेशन। तो हमारे आईआरएएस सर्विस के बहुत सारे लोग इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी डेपुटेशन पे काम करते हैं, तो इट्स अनदर चैनल, अनदर ऑप्शन फॉर देम, अनदर ओपनिंग फॉर देम, and that job is of a different nature. So it is, रेलवे में काम करते करते आप जो कर रहे हैं, जब आप किसी कॉरपोरेशन में जाते हैं तो वहाँ का वर्क कल्चर इज एंटायरली डिफरेंट। तो आपके लिए वो भी एक एक्सपीरियंस का तरीका रहता है, एक नया आप एरिया देख पाते हैं, आप नया कुछ समझ पाते हैं।
अब सो जैसे IRAS अगर आप मतलब कि IRFC में डेपुटेशन पे गए हैं, जी। IRFC में, IRFC का इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो इसका में देर इज लॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग। तो आप बॉन्ड्स निकालते हैं, आप लेंडर्स के साथ वो करते हैं, मतलब बहुत ही डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क है। तो एंटायरली डिफरेंट, तो इट्स ए गुड प्रोफाइलिंग फॉर ऑफिसर्स हु आर गोइंग ऑन डेपुटेशन टू दिस कॉर्पोरेशन। कभी अपॉर्चुनिटी एक और ओपन हो जाती है, एक नया एवेन्यू ओपन हो जाता है, PSUs में भी डेप्यूटेशन के लिए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस, अंडरस्टूड यस। सर। सर हमारे जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनको मैं मेंटर भी करती हूँ और जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको हम टाइगर्स कहते हैं, ट्विंकल्स टाइगर्स। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप अलाउ करें तो आई आस्क। चलिए, बताइए बताइए। सर द फर्स्ट वन इज कि अ, एक टाइगर का क्वेश्चन है कि वो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर IRAS चूज करते हैं तो किस तरह का सोशल इम्पैक्ट कर पाएंगे क्रिएट? देखिए, अब मैं ये कहूंगा कि अगर सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो देखिए, सबसे ज्यादा तो क्रुशियल होता है IAS का जी। होना। इफ यू आर एन IAS ऑफिसर, आपका सोशल इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद पीपल राइट फ्रॉम डे वन। हम लोगों का रेलवे अकाउंट्स में, हम लोगों का, आई विल से दैट वी रन एन ऑर्गेनाइजेशन with multiple services, and everybody, every service and every service officer contribute to the system as a whole. तो अगर इंडियन रेलवे आज एक एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो उसमें प्रैक्टिकली सब सर्विसेज का रोल रहता है, हर एक का अपना रोल है। तो आप उसको सोशल इम्पैक्ट मानिए या जो भी मानिए, बट एट द एंड ऑफ इट, इट इज द सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे विच रन्स वेल बिकॉज ऑफ द, आई से, combined effort of all services put together. अच्छा। सर IRAS में स्पेसिफिकली क्या अमेनिटीज या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ऑफिसर को? एक्चुअली आई विल नॉट से IRAS को अलग से, रेलवे की अपनी फैसिलिटीज अच्छी हैं। अगर आप डिवीजन में हैं, पहली बात तो आपने खुद ही कहा कि दीज आर अर्बन प्लेसेस विच आर गुड। मोस्ट ऑफ द डिविजन आर इन अर्बन प्लेसेस। वहाँ पे आपको एजुकेशन की भी फैसिलिटी है, प्लस रेलवे के अपने बेनिफिट्स बहुत हैं। आपको घर प्रोवाइड होता है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, आपको फ्री ट्रैवल मिलता है। अगर आप ड्यूटी पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप फैमिली के साथ ड्यूटी पे जा सकते हैं जहां भी आप जाना चाहें। तो यू हैव दैट फैसिलिटीज वाइज, आई विल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विस इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी। There is a personal car and home provided to the officer. Yes, yes. Most of the places there can be a waiting period for getting a house, but you are normally divisions and zones में there are enough houses for everybody, especially the senior officers के अपने अपने सबके एरियाज हैं, सबके डिफाइंड कॉलोनीज हैं, एंड विद ऑल amenities and at a Got it, very sir. reasonable priced rent. So yeah. It's a good amenities wise, facilities wise. It is a quite a good organization. तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये कि अकाउंट सर्विसेज में भी कोई हायरार्की एग्जिस्ट करती है क्या इंटरनली इन टर्म्स ऑफ सिविल अकाउंट, डिफेंस अकाउंट, ऑडिट अकाउंट एंड रेलवे अकाउंट्स की नहीं, प्रेफरेंस फिल इनमें करनी एक्चुअली होती है ईच जब सर्विस सर्विस इज अ चूज वेरी करनी वेरी है तो? actually again depends on what is your focus, in the sense that I will say all services are same, but मुझे अपने जमाने में तो याद है कि ऑडिट अकाउंट्स ऑलवेज यूज टू टॉप द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स।
because it has a very, very major role in terms of the audit, and you can rise up to the level of the CAG, Controller and Auditor General. तो बहुत इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल जॉब और बड़ा वो है, लेकिन रेलवे अकाउंट्स, डिफेंस अकाउंट्स, सिविल अकाउंट्स आर इक्वली गुड सर्विसेज, ईच विद देयर ओन बेनिफिट्स भी हैं कुछ। जैसे मैंने कहा सिविल अकाउंट्स है तो मोस्ट ऑफ द पोस्टिंग विल बी इन दिल्ली। अगर डिफेंस अकाउंट्स है तो डिफेंस की सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी जब आप डिफेंस अकाउंट सर्विस ज्वाइन करते हो। बट अलग से अकाउंट सर्विसेज के बीच में मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ईच सर्विस हैज इट्स ओन बेनिफिट एंड तो कंपैरिजन में नहीं है, बट एक ट्रेंड होता है हर टाइम। अभी याद है कि हमारे टाइम में ये ट्रेंड था कि ऑडिट अकाउंट्स यूज टू बी द मोस्ट ऑप्टेड सर्विस इन टर्म्स ऑफ ऑल अकाउंट, और सर डिफेंस की कौन रेलवे सी अकाउंट्स वाज सर्विसेज क्वाइट आप कह हाई, रहे थे? आई थिंक मे बी डिफेंस अकाउंट्स में कह रहा हूँ, डिफेंस अकाउंट जी, डिफेंस का आप कह रहे आईडीएएफ, हैं कि कोई बेनिफिट्स या इंडियन सर्विस डिफेंस के अकाउंट। बेनिफिट्स होते हैं? नहीं, जैसे आप डिफेंस के लोगों को जो बेनिफिट मिलते हैं, इफ यू आर इन डिफेंस अकाउंट सर्विस यू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ डिफेंस। जैसे रेलवे में हम होते हैं तो रेलवे के बेनिफिट मिलते हैं, तो डिफेंस में आप होते हो तो आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, आपको डिफेंस के जो जो बेनिफिट्स होते हैं अदर देन ऑल दोज बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू यू बिकॉज यू आर बेसिकली वर्किंग इन द डिफेंस डिपार्टमेंट। You are on the civil side, but you are basically controlling their finances. सो बेसिकली ये इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस। एंड IAAS में जो है आई थिंक करियर प्रोग्रेशन काफी फास्ट रहता है और डायरेक्टली CAG के अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। सिविल Yes, अकाउंट्स में आपने बताया दिल्ली पोस्टिंग्स का ज्यादा प्रेफरेंस अगर किन्हीं को है तो वो चूज कर सकते हैं। डिफेंस में अगर उनको वो बेनिफिट्स चाहिए या डिफेंस में एसोसिएट होने की इच्छा है तो IDAS। एंड अगर रेलवेज के प्रति उनका इंटरेस्ट है या जो फैसिलिटीज आपने बताई उनमें उनका इंटरेस्ट है तो दे कैन चूज IRAs। सर दिल्ली में आपने प्रिपरेशन किया, डू यू थिंक मैं कि आपको आज एक भी? चीज बस ऐड करना चाहता हूँ कि ऑडिट, प्लीज। नहीं, मैं एक चीज बस ऐड करना चाहता हूँ कि ऑडिट अकाउंट्स was ranked high because of the fact which you also said कि इसमें promotions are very fast in the sense that they are almost at par with IAS because they are their own officer cadre controlling, and CAG is not answerable to anyone. CAG is basically can create as many posts as they want. So अगर उनके लोग 16 years जैसे ही complete करते थे, they used to get their senior administrative grade. Whereas we will wait till 19 years or 20 years even to get that grade. तो फर्क होता है, तो इसीलिए वो लोग कैरियर के एंगल से देखते हैं तो उनको ऑडिट अकाउंट सर्विस उस टाइम बहुत हाई रैंकिंग चल रही थी। बट जस्ट अ पर्सनल क्वेरी सर, व्हेन वी से ऑडिट तो हमने जो पढ़ा है कि दैट इज मेजरली पोस्टमार्टम वर्क आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज completed then they are analyzing if there were any lacunas. But when you are in a account service like ICAS, IDAS and IRAS, during the project and even before the beginning of the project you are able to kind of control if there are any lacunas in the financing of certain projects. You are absolutely right in your assessment. Our job is a on the job work in the sense that we basically are associated from the estimation stage to the completion stage, whereas their work starts after the project is completed because their job is to then we are we are accounts keepers, but there is an audit above us who checks whether we have done our work properly or not. And then there is a CAG report, then there are draft paras, there are audit paras. So they do a macro view of the functioning of various departments. They do all kind of internal check. They do test check. They check whether we are following the procedures or not. So we have above us, above accounts, there is an audit department which is basically monitoring our work.
सो जिन्होंने टाइगर ने सोशल इम्पैक्ट का क्वेश्चन पूछा था, क्या हम उनको ये कह सकते हैं कि सोशल इम्पैक्ट अगर हम एक अकाउंट सर्विस IRAS, ICAS और IDAS चूज करते हैं, तो सोशल इम्पैक्ट इस तरह क्रिएट होगा कि डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक मनी एंड इंश्योरिंग कि जिस प्रोजेक्ट के लिए जितना अमाउंट है वो एफिशिएंटली यूज हो पाए। सो इस तरह से एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट होगा लॉन्ग टर्म। अंडरस्टूड सर। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सर। आपने दिल्ली में प्रिपरेशन किया, बट डू यू थिंक कि आज के टाइम में भी जब इतना इंटरनेट आ गया है और एजुकेशन का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, तो दिल्ली आना या कोचिंग हब्स जहाँ पर कंसंट्रेट हो रखे हैं ऐसी जगहों पे आना जरूरी है प्रिपरेशन के लिए? कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट आज के ज़माने में जब इतना ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन इज़ readily available anywhere as long as you have a good connection, you have a good Wi-Fi or a good data with you, I think you can learn from anywhere. And वो आजकल तो जितने भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, इवन इफ यू वांट टू गो इन फॉर कोचिंग, वो लोग भी आजकल हाइब्रिड सिस्टम में काम करते हैं। दे डोंट वांट यू टू कम टू दिल्ली ओनली, दे विल गिव यू ऑनलाइन कोचिंग ऑल्सो, और ऑनलाइन इज एज गुड एज द रेगुलर कोचिंग। So the last one is that is there any quote or any book that you feel connected with या जो हमारे टाइगर्स को पढ़नी चाहिए, or maybe some quote that just keeps you going? ऐसा बुक कोई नहीं है मेरे हिसाब से, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक लाइफ डिसिप्लिन हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सी, जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ, जो आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, यू शुड बी फिजिकली फिट। इफ यू आर फिजिकली फिट ओनली देन यू कैन बी मेंटली फिट। इफ यू आर मेंटली fit only then you can prepare well. So you can give your 100%, 150% or 200% only if you are physically and mentally fit. तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि पढ़ाई करिए, लेकिन साथ में अपनी हेल्थ का और अपने माइंड का, बिकॉज हम तो साइकोलॉजी में आजकल डे इन एंड डे आउट ये पढ़ रहे हैं कि हाउ टू रिमेन काम एंड हैप्पी, बिकॉज यू हैव टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो पहले आप फिजिकल हेल्थ को अपनी ठीक रखिए, फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए, आपका माइंड पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव माइंड रहेगा तो आपकी लर्निंग फास्टर होगी, आपकी रिटेंशन फास्टर होगी, आपका रिटेंशन बेटर होगा और आपका रिकॉल ड्यूरिंग द एग्जाम बेटर रहेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा। किताब वगैरह तो मैं, आई विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक बुक। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जेन्युइनली काफी सारे डाउट्स हमारे क्लियर किए, थैंक यू। हमारे आई थिंक ट्रैवलर्स इट के। वाज फॉर मी दिस इज नहीं, हमारा भी, फॉर मी ऑल्सो इट इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक दिस, so maybe I'll also improve in my further communications and interactions. But whatever I could share, I could give my thoughts and my experiences that I have shared with you. Thank you very much for inviting me. It's a थैंक pleasure यू सो मच। to be with you. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू।